Welcome back, dear viewers. We are discussing plus one biology. Today we'll start with the new chapter, chapter number 4, that is Animal Kingdom. Kingdom Animalia or Metazoa includes all animals. Animals are multicellular, eukaryotic and heterotrophic organisms. तो किंगडम एनिमलिया में जितने भी एनिमल्स हैं उन सभी को प्लेस किया गया है. Animals, as we know, they are multicellular, eukaryotic and heterotrophic organisms. They cannot synthesize their own food. That's why they are heterotrophic and they show eukaryotic type of cell structure. Multicellular होते हैं. It is the largest kingdom with over 1.2 million members. Now coming to the basis of classification. In spite of differences in structure and form of different animals, there are fundamental features common to various individuals in relation to the arrangement of cells, body symmetry, nature of coelom, pattern of digestive, circulatory or reproductive system. These features are used as basis of animal classification and we'll discuss some of them in today's video. So first of all, coming to levels of organization. Though all members of Animalia are multicellular, all of them do not exhibit the same pattern of organization of cells. जितने भी मेंबर्स हैं एनिमलिया के वो सारे मल्टीसेलर होते हैं, लेकिन उनमें जो सेल ऑर्गेनाइजेशन का जो पैटर्न है वो एक जैसा नहीं है. अलग अलग ऑर्गेनिज्म में, अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है. तो उसमें सबसे पहले जो है वो सेलुलर लेवल है ऑर्गेनाइजेशन का. The body consists of many cells which are not organized into tissues, though some division of labor may occur. तो सेलुलर लेवल में क्या होता है, सेल्स तो बहुत ज़्यादा होते हैं लेकिन they do not aggregate to form tissues. जैसे स्पंजिस हैं, they show cellular level of organization. Next level है tissue level. Here the cells are organized into definite tissues. For example, ciliates. अगर थोड़ा सा हाई चले हम हायर लेवल पे ciliates की बात करें तो उनमें जो सेल्स होते हैं वो ऑर्गेनाइज करके डेफिनेट टिश्यूज की फॉर्मेशन करते हैं. उसके बाद नेक्स्ट लेवल जो है दैट इज ऑर्गन लेवल. इट इज स्टिल हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. दैट इज ऑर्गन लेवल इज exhibited by members of platyhelminthes and other higher phyla, where tissues are grouped together to form organs, each specialized for a particular function. तो ऑर्गन लेवल की ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, जो टिश्यूज होते हैं दे फर्दर ऑर्गेनाइज टू फॉर्म ऑर्गन्स, और जो ऑर्गन्स होते हैं दे परफॉर्म पर्टिकुलर फंक्शन. उसके बाद नेक्स्ट लेवल है ऑर्गन सिस्टम लेवल. हियर सेल्स आर ग्रुप्ड इनटू टिश्यूज इनटू ऑर्गन्स एंड ऑर्गन्स इनटू ऑर्गन सिस्टम, ईच ऑफ व्हिच is connected with a specific function. It occurs in Annelida, arthropods, mollusks, echinoderms and chordates. Next one is next basis of division in animal is body plan. Organ systems in different groups of animals exhibit various patterns of complexities. तो जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म है उनमें जो ऑर्गन सिस्टम है वो अलग अलग कॉम्प्लेक्सिटी का पैटर्न जो है वो शो करते हैं. 3 types of body plans occur in animals: cell aggregate, blind sac plan and tube within tube plan. तो इनको हम पहले डायग्राम के माध्यम से देखेंगे. ये है सबसे पहले जो है सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान है. इसमें बॉडी में बहुत सारे सेल्स होते हैं बट दे डू नॉट एग्रीगेट टू फॉर्म टिश्यूज. दे फंक्शन ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंटली फ्रॉम ईच अदर. फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ स्पंजेस बहुत सारे सेल्स हैं लेकिन जो उनकी फंक्शनिंग है वो इंडिपेंडेंट होती है एक दूसरे से. क्यों? क्योंकि वो टिश्यूज में ऑर्गेनाइज नहीं होते. दूसरा है हमारे पास ब्लाइंड सैक प्लान. इसको हॉलो सैक प्लान भी कहते हैं. इसमें क्या होता है, बॉडी में एक ही सिंगल कैविटी होती है और इसमें एक ही ओपनिंग होती है which acts as both mouth and anus. तो इजेशन और इंजेशन दोनों प्रोसेसेस जो हैं वो इस ओपनिंग के द्वारा होते हैं. तो इसमें जो डाइजेस्टिव ट्रैक है वो इनकम्प्लीट होता है. फॉर एग्जांपल सिलिंट्रेट्स, प्लेटीहेल्मिंथेस, इनमें ये ब्लाइंड सैक प्लान पाया जाता है. उसके बाद नेक्स्ट प्लान की बात करें तो वो है ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान. इसमें क्या होता है, द बॉडी इज मेड अप ऑफ 2 ट्यूब्स. वन इज फॉर्म्ड बाय बॉडी वॉल, एक जो बाहर बॉडी वॉल से बनी होती है, एंड द इनर वन इज फॉर्म्ड बाय डाइजेस्टिव ट्रैक. डाइजेस्टिव ट्रैक जो है इसमें दोनों माउथ और एनस होते हैं और इस प्रकार का जो डाइजेस्टिव ट्रैक है वो कंप्लीट माना जाता है. इंजेशन जो है वो माउथ के द्वारा होती है और इजेशन जो है वो एनस के द्वारा होती है.
और जो बॉडी कैविटी है इसमें नंबर ऑफ ऑर्गन्स, बॉडी कैविटी एंड टिश्यूज आर प्रेजेंट बिटवीन द टू ट्यूब्स। जो दोनों ट्यूब्स हैं इसके बीच में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं। ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान इज फर्दर ऑफ टू टाइप्स, प्रोटोस्टोमेटिक एंड ड्यूटेरोस्टोमेटिक। अगर माउथ पहले अपीयर होता है तो उसको प्रोटोस्टोमेटिक बोलते हैं। अगर एनस पहले डेवलप होता है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट तो उसको ड्यूटेरोस्टोमेटिक बोलते हैं। तो इसी को आगे हम देखेंगे आप द्वारा डिटेल में। कमिंग टू सेल एग्रीगेट प्लान, द बॉडी कंटेन्स न्यूमरस सेल्स बट दे फंक्शंस ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंटली बिकॉज द सेल्स आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड इनटू टिश्यूज, फॉर एग्जांपल पोरिफेरा। दूसरा है ब्लाइंड सैक प्लान, हॉलो सैक प्लान भी कहते हैं इसको। The body contains a single cavity with one opening or mouth which is used for both egestion and ingestion. Digestive tract is thus incomplete. It is found in coelentrates and platyhelminthes. Third one is tube within tube plan. The body is made up of two tubes, outer formed by body wall and the inner by digestive tract. जैसे कि हमने डायग्राम में देखा, digestive tract has a mouth for ingestion and anus for egestion. Such a digestive tract is called as complete digestive tract. Number of organs, body cavity and tissues are present between two tubes. दोनों ट्यूब के बीच में बहुत सारे ऑर्गन पाए जाते हैं, बॉडी कैविटी होती है और टिश्यूज होते हैं। ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान इज फर्दर ऑफ टू टाइप्स, प्रोटोस्टोमेटिक और ड्यूटेरोस्टोमेटिक। प्रोटोस्टोमेटिक में क्या होता है, इन दिस टाइप माउथ अपीयर्स फर्स्ट एंड इज फाउंड फ्रॉम ब्लास्टोपोर रीजन ऑफ द एम्ब्रियो, फॉर एग्जांपल एस्केलमेंथीज, एनालिड्स, आर्थ्रोपोड एंड मोलस्क्स। और ड्यूटेरोस्टोमेटिक की बात करें तो इन दिस टाइप द एनस डेवलप्स फर्स्ट एंड इज फाउंड फ्रॉम ब्लास्टोपोर रीजन ऑफ द एम्ब्रियो। दिस टाइप ऑफ development is found in echinodermata and chordata. Coming to circulatory system, it is a system connected with flow of fluids in the body. Circulatory system may be of two types, open circulatory system and closed circulatory system. तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के आधार पर भी हम जो एनिमल्स हैं उनको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, इट इज अ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इन विच द ब्लड फ्लोज इन ओपन स्पेसेस, lacunae and sinuses. It directly baths the living cells and tissues. तो डायरेक्ट जो लिविंग सेल्स और टिश्यूज होते हैं, दे कम इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द ब्लड. इट इज फाउंड इन आर्थ्रोपोड्स एंड मोस्ट ऑफ द मोलस्क्स. दूसरा है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम. In this type, the blood is circulated through a series of vessels of varying diameter. इसमें क्या होता है, जो ब्लड होता है वो ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है. ब्लड वेसल जो हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज. इसमें क्या होता है, जो ब्लड होता है it does not come in direct contact with the tissues or cells. It is found in Annelida and Chordata. तो आज की वीडियो में इतना ही. Thank you very much.